Hello friends, so today we are discussing here the topic Pitta and Agni. As being the student of Ayurveda, when we joined the first year class of Ayurveda, the teacher taught us about Pitta, then he taught about the Agni. Then the doubt comes in our mind if Pitta and Agni both are same or both are different. If both are same, then why we are studying differently? If both are different, then why you are saying the function is the same? Yes or not? Yeah. So the concept whether the Pitta and Agni are same, this is not the question that comes in your mind or my mind. The question comes first of all in the mind of Acharya Shishrut. He told whether Pitta and Agni both are same or both are different. After arising a doubt, he himself solved the doubt. What he told? He told that Agni perform the different type of functions in our body like Dahan, Pachan, etc. How? By the medium of Pitta. Because the Pitta is the Agni. The basic components or Panchamahabhutik Swarupa of the Pitta is the Agni. And because of this, the Pitta perform the functions of Agni. Then Acharya Bhagavat, he has written in his book that Pitta and Agni both have the similar treatment. Acharya Bhagavat has also written the function, the location of the Agni and Pitta is the Pittidhara Kala. The location of Pitta and Agni is the Pittidhara Kala. And Grahani, Acharya Bose in his book he has written the Pitta Usma of Tejomayi Pitta is known as Panktiman Jatragni. Pitta Usma of Tejomayi Pitta is known as Panktiman Jatragni. So, after considering all these things, I have collected various data from various books that is explaining what are the similarities in between pittas, and then we will see what is the difference between pitta and agni. When we talk about the pitta and agni similarities, the similarities when we talk, जब हम आगे की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि आगे करती क्या है. आगे क्या करती है? कहीं भी आग लगी किसी चीज़ को जला के किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है. द टर्म दैट कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन दैट इन संस्कृत इज नोन एज परिणमन. Transformation or conversion in Sanskrit is known as parinaman. Conversion of one form of the food into the another form of food. That conversion is done by Agni either in the outside of the body or inside of the body. Inside it is done with the help of the Pachak Pitta. Dahan, Pachan, all these are the function of the Pachak Pitta. Then the second important function is the Varna Prasadan. जब कभी भी अग्नि किसी पदार्थ पे या किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो क्या होता है? तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट चमकने लगता है, स्पार्कल करता है. तो ऐसे ही क्या होता है कि रंग वर्ण प्रसादन कलरिफिकेशन का जो फंक्शंस है वो अग्नि के द्वारा संपादित होता है. हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में हम सब जानते हैं रंजक पित्त है. रंजक पित्त रस धातु को कन्वर्ज करके कलरिफिकेशन करके उसके वर्ण का प्रसादन करके उसको रक्त धातु में कन्वर्ट कर देता है. तो ये रंजीकरण का जो सिद्धांत है, जो वर्ण प्रसादन का सिद्धांत है, जो कि रंजक पित्त का काम है, बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ अग्नि. देन वी विल टॉक अबाउट द निर्मलीकरण. निर्मलीकरण मीन्स व्हाट? जब हम कहते हैं कि सोना जितना आगी में तपाओ उतना ज़्यादा प्योर हो जाएगा, तो आगी जो है इम्प्योरिटीज़ को जला देती है और प्योरिटीज़ को मेंटेन करके रखती है. तो आपका जो हृदय है वो कफ महाभूत का स्थान है, कफ दोष का स्थान है, और कफ दोष के स्थान की वजह से वो तमोगुण से अभिभूत रहता है. तो जो पित्त है वो पित्त क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर से, आपके हृदय के अंदर से जो कफ दोष है उसको दूर करके वो उसके सात्विक गुणों का विकास करता है. देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सिमिलरिटी, अवशोषण. अवशोषण मीन्स आपने देखा है कहीं पे आगी जल रही है या कहीं भट्टी जल रही है या कहीं पे बहुत गर्म इन्वायरमेंट है, सूरज की किरणें बहुत तेज पड़ रही हैं, तो उस जगह पे जो कीचड़ का पानी है या दूसरा पानी है वो पानी एज कम्पेयर टू जल्दी सूख जाता है. ये जो अवशोषण का काम है जो कि हमारी बॉडी में कौन करता है? भ्राजक पित्त करता है. जब हम आपकी स्किन पे ऑयल लगाते हैं या विभिन्न तरह के लेप लगाते हैं तो वो स्किन के द्वारा भ्राजक पित्त की सहायता से अवशोषित हो जाते हैं, ऐसा हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं. तो ये जो अवशोषण का कंसेप्ट है, जो अग्नि का कार्य है, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कौन कर रहा है? भ्राजक पित्त. देन कहीं पे आगी जलती है, अंधेरा है और कहीं आगी जल रही है, तो क्या होता है? सबसे पहले उजाला हो जाता है. तो उजाला मतलब रोशनी, रोशनी मतलब दर्शन. तो जो दर्शन का जो कंसेप्ट है जो कि हमारी बॉडी में कौन करता है? आलोचक पित्त. आयुर्वेद कहते हैं कि आलोचक पित्त आपकी आंखों में रहता है और आंखों में रह के वो दर्शन का काम संपादित करता है. तो ये जो कंसेप्ट है, चाहे वो रंजक पित्त का हो, चाहे वो भ्राजक पित्त का हो, चाहे वो आलोचक पित्त का हो, चाहे वो पाचक पित्त का हो, ऑल दीज कंसेप्ट
comes under a broad heading of Agni. If we will talk about both are same, then there is a doubt ki whether if both are same, then why Acharya has a doubt ki they have mentions first Pitta, then Agni. He has retained the importance of Agni. He has retained the importance of Pitta. So because when we talk about the Acharya Chakrapani, he was the commentator of Acharya Samhita. He has written, when a person consume a katu tikt evam char ahar, because of the intake of the katu tikt char ahar, आपकी बॉडी में क्या होता है कि पित्त बढ़ता है और अग्नि कम हो जाती है. जो पित्त कटु तिक्त क्षार आहार है वो अग्नि का समन करते हैं और पित्त को बढ़ाते हैं. ठीक है ना. गोलगप्पे खाने के बाद हमें क्या होता है, गोलगप्पे जब हम खाते हैं कटु तिक्त क्षार आहार है, अगर ज़्यादा नहीं गोलगप्पे खाने चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी अग्नि उस टाइम तो आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी अग्नि जो है वो कम हो जाएगी. तो आई हैव कलेक्टेड द वेरियस डाटा फ्रॉम द वेरियस बुक्स. On that, I have stated the few points that will indicate what are the difference, why there is a difference. So Acharya Shishrut, when he has written the definition of swastha in his book in Sushruta Samhita Sutristan 15 chapter, he has written samdos samagni samdhatu malakriya prasanna atma indriye mana swast ityavidiyate. अगर दोष और अग्नि अलग अलग नहीं है तो आचार्य सुश्रुत ने समदोष और सम अग्नि दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों किया. अगर वो सेम होते तो आचार्य सुश्रुत अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं करते. उसके बाद हम देखेंगे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं. अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है और पाचक पित्त या पित्त हमेशा अधोगामी होता है ना. अग्नि के अंदर क्या होता है, अग्नि के अंदर रजोगुण होता है और पित्त के अंदर सत्व और रजोगुण दोनों होते हैं. पित्त हमेशा विसर्गंधी होता है, लेकिन अग्नि के अंदर कभी भी कोई गंध नहीं पाई जाती है. मत्स्य मांस, मछली का मांस, जिसे खाने के बाद हमेशा पित्त बढ़ जाता है और अग्नि कम हो जाती है. घी के सेवन से क्या होता है, घृतम पित्त अनिलहरम, सबको पता है. तो घी के सेवन से पित्त कम हो जाता है और अग्नि बढ़ जाती है. आपकी बॉडी में जो पाचक पित्त है वो बहुत सारे काम करता है. दहन का काम करता है, पाचन का काम करता है. इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्लेदन एंड स्नेहन, वो अग्नि नहीं करती. क्लेदन एंड स्नेहन पाचक पित्त करता है, अग्नि नहीं करती. अगर वो दोनों सेम होते तो फिर दोनों काम कर लेते. उसके बाद अग्नि किसी निर्जीव पदार्थ में पाई जा सकती है, लेकिन पित्त हमेशा जैविक पदार्थ में, लिविंग थिंग्स के अंदर ही पाया जाता है. तो आफ्टर कंसिडरिंग द ऑल दिस डाटा वी कंक्लूड दैट अग्नि एंड पित्ता बोथ आर फंक्शनली सेम बट दे आर द स्ट्रक्चरली डिफरेंस. हाउ वी सेज कि जो आपकी अग्नि है, जो पाचक पित्त का स्वरूप है, पंचभौतिक स्वरूप है, उसमें आग्नेय और द्रव्य, जलीय महाभूत और अग्नि महाभूत दोनों हैं. आग्नेय महाभूत ज़्यादा है, जलीय महाभूत कम है. तो पित्त अपना काम करता है अग्नेय महाभूत की प्रेजेंस की वजह से. अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझें तो जब हम उत्तराखंड जाते हैं तो उत्तराखंड में बहुत सारे हमें गर्म जल के स्रोत मिलते हैं और उन गर्म जल के स्रोत में हम नहा भी लेते हैं. और अगर हमने वहाँ देखा है कि जनरली लोग पोटली में चावल पकाते हैं और चावल पक जाते हैं. तो जो चावल पक रहे हैं वो जल का काम तो पचाना नहीं है, लेकिन जल के अंदर जो अग्नि महाभूत का अंश है उसकी वजह से चावल पक जाते हैं. तो व्हाट वी से, बिकॉज ऑफ द द्रवत्व इन अग्नि it act as pitta, and when the same pitta become ruksh it act as agni. So I hope you understand the concept of pitta and agni. Once again I will summarize in the brief. If question will comes in your exam 5 marks, what is the difference between pitta and agni, then you will write आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले ये डाउट उठाया कि पित्त और अग्नि सेम है या अलग है. तुरंत ही उन्होंने अपने डाउट का तुरंत ही समाधान करते हुए लिखा कि पाचन और दहन का कार्य पित्त जो आपकी बॉडी में करता है वो अग्नि के माध्यम के द्वारा ही करता है, क्योंकि पित्त आग्नेय है. उन्होंने लिखा ना खलु पित्तम व्यतिरेक अन्यद अग्निर उपलब्ध थे. सेम कंसेप्ट को आचार्य चक्रपाणी भी कहते हैं कि कटु तिक्त क्षार पदार्थों के सेवन से आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है और अग्नि कम हो जाती है. आचार्य भागवत कहते हैं कि पित्त और अग्नि की चिकित्सा सेम है, पित्त और अग्नि के स्थान सेम है. देयर आर सो मेनी सिमिलरिटीज. तो सिमिलरिटी परिणमन के रूप में मिलती है, सिमिलरिटी अवशोषण के रूप में मिलती है, सिमिलरिटी दर्शन के रूप में मिलती है, सिमिलरिटी वर्ण प्रसादन के रूप में मिलती है, सिमिलरिटी निर्मलीकरण के रूप में मिलती है. देन व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाई बोथ आर डिफरेंट. तो डिफरेंट वो इसलिए है कि जैसे एक पहला मोस्ट एग्जांपल आचार्य सुश्रुत ने जो कोटेशन दी है स्वस्थ की जो सबको आती है, उसमें सम दोष और सम अग्नि दो शब्द अलग अलग यूज हुए हैं. आचार्य सुश्रुत ने बोला है पित्त हमेशा
अधोगामी होता है और अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। पित्त के अंदर सत्व और रज दोनों गुण होते हैं, अग्नि के अंदर रजोगुण होता है। और पित्त जो है पित्त विषगंधी होता है, अग्नि के अंदर कोई भी गंध नहीं होती है। घी खाने से पित्त का नाश होता है, पित्त शामक होता है लेकिन अग्नि बढ़ती है। मछली का मांस खाने से पित्त बढ़ता है लेकिन अग्नि घट जाती है। पित्त अलॉन्ग विद दहन एंड पाचन क्लेदन और स्नेहन का भी काम करता है, जो कि अग्नि नहीं करती है। इसके अलावा पित्त जो है वो केवल सजीव द्रव्यों में पाया जाता है, अग्नि निर्जीव द्रव्यों में पाई जाती है। What are the similarity? The Agni act by the medium of Pitta. Functionally both are same, but structurally both are different. I hope you understand. Thank you.